جہاں دیکھیں وہاں پتنگ، لاہور کا آسمان ہو گیا ہے رنگ برنگ، زندہ دلانے لاہور آج بسنت منا رہے ہیں۔ ہر جانب خوشیاں ہیں، ہلا گلا ہے، بو کاٹا کا شور ہے اور ڈھول کی تھاپ پر رقص ہے۔ پورے ملک سے آئے شہری لاہور میں بسنت منا رہے ہیں۔ چھتیں، مرکزی چوراہے، گلی محلے سب بسنت کے رنگوں میں ڈھل چکے ہیں۔ لاہور میں آج کی صبح کچھ الگ سی تھی، ایک منفرد رونق، میٹھی میٹھی سی خوشی فضا میں بکھری بکھری تھی۔ منہ اندھیرے کڑھائیوں سے اٹھتا دھواں اور حلوہ پوری کی خوشبو اشارہ دے رہی تھی کہ آج کچھ خاص ہے۔ دہکتے تندوروں سے نکلتے گرما گرم کلچے اور ساتھ مرغ چھولوں کا امتزاج بے چینی بڑھا رہا تھا۔ جی ہاں، آج لاہور میں 25 سال بعد بسنت تہوار نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مرکزی شاہراہوں چوراہوں کو بڑی بڑی پتنگوں سے سجا دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بسنت ہو اور ہم لوگ پتنگیں نہ اڑائیں؟ باربیکیو بھی کیا تھا، کچھ دوستوں کو بلایا، کوئی ایسے دوست بھی تھے جو 10-12 سال سے ملے ہی نہیں تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا، بڑے خوش ہوئے اس بہانے سے۔ بسوں گاڑیوں پر بھی تہوار کی مناسبت سے اسٹیکر لگا کر خصوصی تیاری کی گئی۔ بہت دیر بعد آیا فیسٹیول یہ والا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے منائیں گے اس کو۔ مریم نواز صاحب کا شکریہ۔ حفاظتی اقدامات کے باوجود جگہ جگہ عارضی طبی مراکز کا قیام اس بات کا ثبوت تھے کہ تہوار منائیں حفاظت کے ساتھ۔ میں مریم نواز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا زبردست ایونٹ جو ہے دوبارہ سے جو ہے ری اوپن کیا، یہاں پر پکچرز وغیرہ بنائی ہیں، بہت ہی زبردست انتظام کیا ہوا یہاں گورنمنٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بسنت کے رنگوں میں سجا لاہور 3 دن تک اسی خوشگوار گہما گہمی سے پر رونق رہے گا۔ اور رات بھر پتنگیں اڑانے کے بعد لاہوری ایک بار پھر چھتوں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بسنت کے تہوار کو حکومت کا خوشگوار فیصلہ قرار دیا ہے۔ آئیے آپ کو لاہور لیے چلیں گے، وہیں سے جانتے ہیں شہریوں کے کیا تاثرات ہیں۔ ہمارا کام آگے سے بہت زیادہ کام ڈبل ہو گیا، سیل کو فرق پڑ گیا۔ یہ پسند کا جو فیصلہ کیا ہمارے اندرون شہر میں بہت کاروبار میں فرق پڑ گیا گا۔ بسنت کی وجہ سے اندرون شہر لاہور میں رونق آئی ماشاءاللہ، اور دکانداری میں ماشاءاللہ فرق پڑا، سیل میں فرق پڑا ہے۔ یہ بسنت آنے میں اندرون شہر لاہور میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گاہک بھی زیادہ آ رہے ہیں اور جوش و خروش کا عالم ہے۔ بسنت کے تہوار کے لیے ہم ادھر آئے دیکھنے کے لیے، یہاں آ کر بہت مزہ آیا۔ ایسے تہوار دوبارہ ہونے چاہیے، بار بار ہونے چاہیے ایسے تہوار۔ تو بچوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم بسنت کے سلسلے میں انجوائے کرنے کے لیے۔ یہاں یہ بڑا ٹریڈیشنل کھانا ہے پھگو باٹ کا، تو بچوں کو لے کے نکلے، انجوائے کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ بسنت کا موقع ہو اور خصوصی انتظامات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتظامات کا احوال جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہوریوں پر بسنت کا رنگ خوب چڑھا ہے اور لاہوریے جو ہیں رات سے جو ہے پتنگیں اڑانے کے بعد اب ہم نے کتنے کی پتنگیں لی ہیں؟ 300 کی ایک لی ہے، 9000 کی 30 بننی ہے۔ تھینک فل ہے مریم نواز صاحبہ کا جنہوں نے اجازت دی ہے، اور کوئی مہنگائی نہیں ہے، سارے بول رہے ہیں مہنگائی ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ 300 کا ملا ہے، انشاءاللہ 600 کا بھی ملے گا آرڈر تو انشاءاللہ لیں گے۔ جی دیکھیں، یہی جوش و جذبہ ہے نوجوانوں میں۔ آپ یہ بتائیں جی کہ کتنے کی پتنگیں ملی ہیں اور یہ پتنگیں لے کے کہاں جائیں گے اور پوری دوستوں کے ساتھ کیسے انجوائے کریں؟ جی بالکل، یہاں پہ لاہور میں ہم آئے ہیں پنڈی سے نا، تو یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ بڑی سستی ملی ہے، سستی کوئی نہیں ملی بھائی۔ یہ پنڈی میں 50-100 روپے کا گڈا ہے، جو ادھر 300 350 کا دے رہے ہیں۔ بالکل، نوجوان جو ہیں بڑے پرجوش ہیں۔ نوجوانوں نے یہ گلہ بھی کیا ہے کہ پتنگیں جو ہیں مہنگی ہیں اور ڈور دستیاب نہیں، مگر اس کے باوجود عام جو دھاگا ہے اس سے بھی ہم پتنگیں اڑانے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں سے بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں پتنگوں کی خریداری کرنے کے بعد چھتوں پر جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ تو ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دشمن کو پاکستان کی خوشی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ راولپنڈی کے مضافات میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ خارجی خودکش حملہ آور کا تعلق فتنہ الخوارج سے بتایا گیا ہے۔ پولیس ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ خودکش جہنمی کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ کچھ فوٹیجز بھی اس کے سامنے آئی ہیں۔ اس وقت آپ کو جائے وقوع کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ 12 معصوم نمازیوں کی شہادت کی اطلاع ہے، متعدد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسپتال کے مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو زخمی ہیں
उनको फौरी तिबी इमदाद के लिए पहुँचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है जो इलाका है उसको, और साथ ही साथ यकीनी तौर पर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी का मज़ाफ़ात है, यहाँ पर मस्जिद में खुद कुछ धमाका हुआ है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, एक खुशी का त्यौहार जारी है पाकिस्तान में, ऐसे में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। एग्जैक्टली बताइएगा किस जगह पे, किस स्पॉट पे धमाका हुआ है, क्या इत्तलात हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, रावलपिंडी का नवाही इलाका है जहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से ये टारगेट किया गया है। और अब आप देखें, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि किस तरह से किस मकाम पर और किस मौके पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई, इससे बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम की खुशियों के दुश्मन जो हैं वो बिल्कुल ये नहीं देख सकते कि पाकिस्तान एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। यही वजह है कि इस तरह से टारगेट किया गया नमाजियों को जब वो नमाज अदा कर रहे थे, और उसके नतीजे में जो पुलिस ज़राए हैं उन्होंने भी बताया कि जो दहशतगर्द है उसको गेट पर रोका गया, तो उसने वहाँ पर अपने आप को धमाके से उड़ाने की कोशिश की, बल्कि धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में तक की जो बात है उसके मुताबिक 12 मासूम नमाजी जो है वो शहीद हुए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। इस्लामाबाद में पिम्प मुंतकिल किया गया है, और पिम्प में बताया गया है कि 69 के करीब जो है वो जख्मी लाए गए हैं वहाँ पर। और जो जैसे मैंने शहीद होने वालों की तादाद बताई वो 12 के करीब इस वक्त बताई जा रही है, लेकिन वंस अगेन ये सलमान, आपकी आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन है, ये क्लियर कीजिएगा, आप 59 कह रहे हैं या 69 बता रहे हैं जख्मियों की तादाद? जी मैं 69 बता रहा हूँ। राउंड अबाउट 70 जो है ये पिम्प्स के ज़राए के हवाले से जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिम्प्स के ज़राए के हवाले से ये बात सामने आई है। लेकिन अभी ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, और उस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, पिम्प्स और पॉलीक्लिनिक जैसे, वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी नाफिज की गई है। और उसके साथ साथ जो जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल भी क्योंकि किया गया है इस इलाके से। तरलाई का ये इलाका है जहाँ पर ये मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका हुआ था, और जो ऐनी शाहिदीन हैं जो जख्मी हैं उनके मुताबिक जो सजदे में थे लोग नमाजी, और वहाँ पर उसके बाद फिर फायर के बाद जो है वो फौरी तौर पर धमाका हुआ, जो गालिबन जो हमलावर है उसको रोके जाने की कोशिश जो है वो की गई, और उसके बाद फिर एक अफरा तफरी फैल गई। तो इसके बाद फौरी तौर पर लोगों को मुंतकिल किया गया पिम्स के अंदर, पॉलीक्लिनिक के अंदर। यही दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के। तो हम जो असल इशू है जिसके ऊपर हमारी सबकी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए वो ये है कि दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के जो शहरी हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, उनकी खुशियों को टारगेट किया गया है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए, पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बने। और यही वजह है कि उन्होंने इनको टारगेट किया है एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान एक नई, आप कह लें कि फेज में एक नए मौके में दाखिल होने जा रहा था। जी पढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। रावलपिंडी धमाके से मुतालिक बताया जा रहा है कि मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के तायुन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी गई हैं। इसके अलावा वज़ीर सेहत को खुद निगरानी के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। ज़िम्मेदारान को तायुन करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से हुक्म सादिर हुआ है, शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस अज़म का इआदा भी किया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की गई है बल्कि इसकी निगरानी का हुक्म भी दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कुछ भी इस वाक़े में हुआ है, कौन कौन से अनासिर मुलव्वस हैं, किस तरह से ये धमाका हुआ, किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है। आपको बता दें कि रावलपिंडी में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ, खारजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना उल ख़वारिज से बताया गया है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि जो नमाजी वहाँ पर मौजूद हैं, जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पहले कुछ फायर की आवाज़ें आई और उसके फौरी बाद ये धमाका सुना गया। और फिर हम देखते हैं कि बताया जा रहा है कि जो नमाजी नमाज उस वक्त अदा कर रहे थे, सजदों में, रुकू में थे, सर बसजूद थे उनके, और उसमें उस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि ऐसे में एक जहन्नुमी शख्स ने इस तरह की कार्रवाई की है, जिसको कोशिश किया गया कि मौसर अंदाज से टैकल किया जाए। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि उसको अंदर दाखिल होने से रोका गया। जब उसको गेट पर रोका गया तो उसने ये खुद को धमाके से उड़ाया है। ये अब तक की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनको ये
बताया जा रहा है जो जख्मी हैं, जिनको जख्म आए हैं, उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पोली क्लिनिक और इस्लामाबाद का पिम्स हॉस्पिटल है, जो कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं 2, जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद होती हैं। वहाँ पर उन तमाम तर लोगों को, जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसके मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के मनाजिर हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या अभी तक की कार्रवाई हो सकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ करके बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि 2 बड़ों की अहम मुलाकात भी हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिले हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, आप कंटिन्यू भी कीजिएगा और ये भी बताएगा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक क्या कुछ रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर लाया जा रहा है लोगों को। तरलाई दोनों शहरों के, आप समझ के दोनों शहरों को कनेक्ट करता है, दोनों शहरों से मिलता है। तो यही वजह है कि जो रावलपिंडी है वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल भी, वहाँ पर भी जख्मियों को लाया गया। और इस वक्त जो इस्लामाबाद इंतजाम है उसमें जो धमाके के नतीजे में जो शुहदा हैं उनकी तादाद इस वक्त 24 हो चुकी है। और इसके अलावा जो जख्मी है मजमूई तौर पर 101 है। तो ये इस वक्त की जो फिगर्स हैं इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में सामने आए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके साथ साथ जो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इंतजामिया है, उनकी जानिब से भी फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल है, स्टेटमेंट्स हैं, वो भी सामने आ रही हैं। सदर ममलिकत का बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है, जिसमें शदीद मजम्मत की गई है इस वाक़े की और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाए जाने के ऊपर इज़हार मजम्मत किया गया है। सदर ममलिकत की जानिब से जो धमाके में शहीद होने वाले हैं उनके अहले खानदान की ताज़ियत भी की गई है और उनके लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी रद्द अमल जो है वो सामने आया है और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और इंतजामिया जो है वो फौरी तौर पर इस वक्त एक रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन आप उसको कह लें उसमें मसरूफ है, ताकि इस दहशत गर्दी के इंतहाई घिनौने, इंतहाई मकरू और बाकी जो शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, उनके जख्मों मरहम। इंतजामिया इस्लामाबाद की वो भी पूरी तरह चौकस है। फौरी तौर पर जो तरजीह है वो यही है कि जख्मियों की जो बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो को प्रोवाइड है। उसके साथ साथ जो डेफिनेटली इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे उस वाक़े के जिम्मेदार हैं। डेफिनेटली हम सबको पता है कि जिम्मेदार जो है वो कौन है, वो कौन सी सोच है, वो कौन से एलिमेंट हैं इस बात पीछे हैं। लेकिन जो दौलतकार इस तरह के वाक़यात के अंदर मुलविस होते हैं उनके लिए भी जो आप कह लें कि शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद तरलाई में वाक़ मस्जिद के अंदर रिपोर्ट हुआ है। खुदकुश धमाका हुआ है, खारजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना और ख़वारिज से बताया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर बैठ के इस तरह की खबर देना आसान नहीं होता। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी बता रहे थे कि अब 24 अफराद की शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया इस अफसोसनाक वाक़े पर, उनसे बात करेंगे। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक और नया दिन, एक और अफसोसनाक वाक़या। पाकिस्तान में खुशियां लोगों से हजम नहीं होती हैं, ये अब साबित हो चुका है। देखें, जब इनमें हिम्मत की वजह सिक्योरिटी फोर्स का मुकाबला करने की, क्योंकि उन्होंने 216 दहशतगर्द मारे हैं बलूचिस्तान में, और आज भी आपने देखा होगा कि औरंगजेब में और खैबर एजेंसी में 24 दहशतगर्द फितल खारिज को मारा है, जिसकी वजह से आप ये सॉफ्ट टारगेट पे जा रहे हैं। नहाते नमाजियों के ऊपर मस्जिद में, उसके बाद ये अवामी इज्तिमा होते हैं, शादी तकरीब होती है, ये वहाँ जाके मारे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बुज़दिल हैं, कितने जानवर हैं और कितने इनको इंसानियत इनके अंदर है कि कोई भी मुसलमान क्या मस्जिद में जाके धमाका करके नमाजियों को शहीद कर सकता है। तो आई थिंक ये एक तो घट जो बड़ा क्लियर पता चल चुका है, जो कि भारत, उसके बाद BL ये बलूचिस्तान और बलोच जगजती कमेटी जो ये मिल के पाकिस्तान में बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और अभी तो ये मिसाइल पतंग की बात भी क्लियर हो गई है कि सारे मिसाइल पतंग दहशतगर्द तंजीम में एनरोल हो चुके हैं और फिर दहशतगर्दी करते हैं। जब मारे जाते हैं तो फिर उनकी बॉडी को क्लेम पर नहीं आ जाते हैं। इसी तरीके से अब इनका इलाज यही है कि अब इंशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी एक एक जगह ये ढूंढेगा, ये सहूलतकारी होती है, हैंडलर उनको मारेंगे ताकि उनको खत्म करेंगे तो उनकी आइज और ये जो होते हैं वो खत्म होते हैं।
सही है। हारिस साहब, हम गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात कर रहे थे, अफसोसनाक वाक़यात हम ज़ाहिर जिक्र करते रहते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि जो इनके हैंडलर्स हैं उन तक पहुँचने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इज़ दैट इनफ? व्हाट डू यू थिंक कि इससे ज़्यादा मज़ीद क्या हो सकता है? देखिए, स्ट्रैटेजी जो ये दहशत करते हैं इनके खिलाफ तो काइनेटिक ऑपरेशन होते रहेंगे, लेकिन साथ ही अब जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, अब देखें 215-16 लोग मारे गए हैं। ये आके रात को कहीं छुपे हैं, किसी न किसी के घर में उन्होंने पनाह ली है, किसी को खाना पीना दिया है, प्रोटेक्ट दिया है। अब उनको पकड़ रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, ताकि उनको देखें। उनका काम तो या तो आगे बताते हैं कि जब हमारे पास जबरदस्ती आगे भूखे हैं, आप इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप नहीं बता दें, इसका मतलब आप सामने लें, उनके साथ मिले हुए हैं, आप भी दहशत करते हैं, आप इंशाल्लाह इनके खिलाफ भी कार्रवाई। सही। अच्छा, और जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस पर पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से सफाया किया गया है और ऑपरेशन मुकम्मल करके बाकायदा अनाउंस किया गया है, फिर आज हम देखते हैं कि जो यहाँ KP साइट पर जो सारे मामलात हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके खातिर खा नताइज तो हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप पहले भी कह रहे थे कि ये दहशतगर्द अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, शायद यही वजह है कि तवातुर के साथ हम इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट होता देख रहे हैं। देखें, ये आप सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट टारगेट पे जाते हैं। कहीं पर ये शादी की तकरीब में जाते हैं, मस्जिदों में इनोसेंट नमाजियों को शहीद करते हैं, या कहीं पर अवामी इज्तिमा होते हैं, वहाँ जाके ये करते हैं। अब इससे ये अंदाजा लगाएं कि ताकत खत्म हो चुकी है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्स पे अवॉइड करते हैं। इनमें हिम्मत भी मुकाबला करें। 216 वहाँ हमारे कल आपके सामने और गई एजेंसी में और सबक एजेंसी में हमने 24 दहशतगर्द और मारे हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि हम कितने इनके नज़दीक पहुँच सकते हैं। हर जगह जब हमें खबर है, इंशाल्लाह आप देखेंगे गुजरते के बाद इनका सफाया होगा और पाकिस्तान एक बहुत महफूज जो होगा वो मुल्क होगा। ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ है। खारजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना उल ख़वारिज से बताया गया है और खुदकुश जहान्नुम को गेट पर रोका गया। तो ऐसे में एक खुदकुश धमाका रिपोर्ट हुआ है जिसमें शहीद अफराद की तादाद 24 तक जा पहुँची है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह रखेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।